Okay. So as far as last lecture was concerned, it was based on the checking of an assignment. Am I right, doctors? Yes. Yes, sir. Yes, sir. The assignment was basically for the glands, their secretion and the composition. Am I right, doctors? Yes, sir. Perfect. I expect almost 71 students. Today's 53. Why? So many students are absent. या मैंने कहीं ग्रुप पर मिस कर दिया है डालना. Okay. Some students left because they don't want to continue with MD batch. They want to continue with MA3. है ना? Fine, no problem. उस विषय पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे because there are so many students, those who send me their request to change their batch. है ना? By tonight only, कोई आपके friends हो तो बता दीजिएगा. By tonight only, I'll shift their batches. And once I'll shift their batches, then I'll remove them from particular group. Don't left at their own. खुद से left ना करें. मैं उन्हें दूसरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा. तब मैं उन्हें यहाँ से रिमूव करूंगा. अदरवाइज क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ कंफ्यूजन हो गया तो चीजें छूट जाएंगी, मिस हो जाएंगी. So once you will be added, then you will be removed. Agree? सर सर मुझे भी MA3 में जाना था, तो ये अभी क्लास कंटिन्यू करूँ या डायरेक्ट उधर ही कंटिन्यू? हाँ भाई. अरे पाटिल साहब कंटिन्यू करो, पढ़ने में बुराई थोड़ी होती है. वही इसलिए बोल रहा था. एक्स्ट्रा पढ़ लेने में, मैं इसलिए बच्चों को बोला था कि एक्स्ट्रा पढ़ लेने में बुराई थोड़ी है. वो तो फिर से स्टार्ट करना है ना अपने को. यस सर. ओके, चलिए फाइन. सो based on that assignment of different glands, their functions, their composition, I hope you made a table. You prepared a table? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सबने मुझे यस कहा है. पूरव, डॉक्टर पूरव, are you there? Yes, sir. Purav, you have prepared the table? Sir, half. बस वही तो बात थी ना अभी दोस्त. ये हाफ वाला तो काम नहीं चाहिए अपने. Anyone who prepared it completely? Sania Sheikh, Bhagyashri, Swaraj, Sayan, Arpit, Gitesh, Shreyas. Anyone raise your hands if anyone Yes, have. sir. Who prepared? Sir, Shreyas Paithani. Shreyas Paithani and Gayatri raised their hand. Disha Suryavanshi raised their hands. Sania Sheikh raised their hands. Abel Varghese. Okay, fine. All those who prepared the table, just share on my DC number. Just share it on my DC number. Spandan, did you prepare it? Yes, sir. Perfect. Samida, and all those who have raised their hands, just send it on my DC number so that I'll check. And if there are any issues, have you shared? नंबर एक बार लिख के दो ना. Yes. Please update this with for next 2 years. 8878737202. This is my doubt clearing number. So please share your doubts, your table. In fact, abhi to table share kare aap that you have prepared for different types of glands. Have you shared? Have you shared? Just a minute, sir. Forwarding that one. Okay, perfect. Whose number is this? Sir, mine, Arpit. Arpit, very good. Glands, salivary glands, saliva, salivary juice, composition, function. तीन ही पार्ट दिख रहे हैं इसमें. तीन ही पार्ट दिख रहे हैं इसमें तो. How many parts I told you? अरे कितने कॉलम बनवाए थे अर्पित? 4, sir. Sir, I left one. Sorry, sir. Which Sir, one I you? recall. Yes. Which one you missed?
Which one you missed? Amount you missed. Yes, sir. Yes. I will add the amount So also. just write it below the, yes, add the amount below the secretory juice. जहां saliva and salivary juice लिखा है ना, इसके नीचे यहां पर ऐड कर दीजिएगा salivary juice के नीचे amount. Okay? Okay, sir. Very good. Shreyas Paithane. Perfect. Very good. लेकिन ये आधा पार्ट दिख रहा है, हाफ पार्ट इज हियर. Yes, sir. वो space नहीं. वेरी गुड. You people are doing that's enough. मुझे बस यही सब चेक करना होता है. ये क्या है भाई? ऑर्गन, ग्लैंड, टाइप ऑफ ग्लैंड, secretory juice. बहुत बढ़िया. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. But half part you shared me, Shreyas. कंचन, वेरी गुड, वेरी नाइस. ये बस यही एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि सारा एक साथ आ जाता है एक पेज पर. कंचन, वेरी नाइस. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, वाटर, लीटर, वेरी नाइस, फैंटास्टिक. डॉक्टर कंचन, am I audible? Thank you, sir. Yes, sir. Very nice, Dr. Kanchan. Fantastic. Very nice. Thank you, sir. सानिया, you also missed. अच्छा, composition में ही आपने amount लिख दिया सानिया. 1.0 to 1.5 liter. Is it? Yes, sir. Perfect. Okay, perfect. No problem. Good. Whose is this? Whose is this? Able. Function, Dr. Varghese, और ज़्यादा लिखने. I expect more functions. Able. Okay? Okay, perfect. Whose is this? Sir, Arnita. अरुणिता. वेरी नाइस. अरुणिता, आपने भी जो लिखा है, आप लोगों को मैंने कहा था वैसे आप थोड़ा सा उसको हॉरिजॉन्टल पेज में करते तो ज्यादा बेटर होता, बट एनीवेज. ओके, सिक्रेटरी जूस, सलाइवरी अमाइलेज. परफेक्ट. यहाँ ग्लैंड के नाम भी लिखे गए, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी. एक काम और कर देती था. वेरी नाइस, यू डिड वेरी गुड. पैरोटिड को भी उसकी डक्ट का नाम भी लिख दो, अरुणिता. Yes, sir. So that will improve, है ना? Yes, sir. परफेक्ट. Yes, sir. चलिए, वेरी गुड. तो डक्स के नाम भी ऐड, सभी लोग डक्स के नाम ऐड कर सकते हैं. दैट विल बी एन एडिशनल पार्ट. स्पंदन, वेरी गुड. बुक्वाड़ा करके लिखा गया. पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल. परफेक्ट. आपने अलग अलग ही लिखा इसको. वेरी नाइस. ये भी बहुत अच्छा तरीका था. तीनों को एक साथ करने का, तीनों को अलग अलग भी कर दिया. गैस्ट्रिक, लीवर, पैंक्रियास, जूस. ओ मैडम, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है? स्पंदन. Sir, in 7th number, intestinal juices. सक्कस, एंटेरिकस, वाटर प्लस म्यूकस प्लस ऑर्गेनिक एंजाइम. मैडम, एंजाइम्स के नाम भी लिखने पड़ेंगे क्योंकि एंजाइम्स के नाम ही तो पूछे जाएंगे आपसे. स्पंदन. Okay, sir. I Okay. will and send you. Yes, yes. Please add it. But very good going. सब अच्छा कर रहे हैं. और PDF. Whose is this? Sir, Gayatri. Okay. Very good. Let me check. Gastric juice. This amount. Secretory enzymes. ये सलाइवरी के बाद गैस्ट्रिक की वहां से लाइन कैसे ऊपर नीचे कैसे हो गया हो? अच्छा. सर एक्चुअली वो ऊपर मैंने गलती से लिख दिया था टाइलिन और लाइसिन के लाइन में, तो वो कट करके फिर से नीचे लिखा. Okay, okay, no problem. तो But फंक्शंस expect, फिट नहीं हुआ, yes, तो फंक्शन और अमाउंट ऐसे. ठीक है. Expect more clarity, madam. Better presentation expect. Okay, Gayatri. Yes, yes, sir. Okay.
Samidha Jadhav. Very good. Very nice. मतलब hardly I received 9 to 10. This one is very good. Who made it? Sir, Disha. दिशा सूर्यवंशी. वेरी गुड बच्चे. यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. एक और अच्छा इसके पहले जिसको बोला था मैंने, कंचन ने बहुत बढ़िया लिखा था. बट वेरी नाइस. दिस इज एक्सपेक्टेड. मैंने कहा था 2 पेजेस को ऐसा खोल लें तो आप डिटेल में लिख पाएंगे. देखिए कितना बढ़िया से फंक्शन पूरे एक पेज पे लिख पाए हैं. अमाउंट अलग से क्लियरली विजिबल हो रहा है. 2 कलर के पेन का इस्तेमाल हुआ है. प्रेजेंटेबिलिटी डज मैटर. वेरी नाइस दिशा. गुड. Thank you, sir. लीवर एक ही पार्ट दिख रहा है तो दूसरा पार्ट कहाँ है भाई? एक ही पार्ट दिख रहा है दोस्तों. तो ओके ठीक है. ये भी अच्छा लिखा है. किसने लिखा है ये? अंकुर सर. अंकुर. वेरी गुड अंकुर. नीट को स्टार भी लगा दिया आपने. मतलब ये पूछा जाएगा. वेरी नाइस. व्हाट डज मैटर इज एवरीथिंग इज प्रेजेंटेशन. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वही साथ दिलाता है. Sorry sir, I didn't prepare table but I wrote point to point. Whose is this? I am Shweta, sir. श्वेता. इसमें बेटा दिक्कत कुछ नहीं. ये भी अच्छा है. सलाइवरी ग्लैंड का अलग लिख दिया, गैस्ट्रिक अलग लिख दिया. हमें कोई समस्या नहीं है. लर्न करने की जहां बात आती है ना डॉक्टर, वहां पर टेबुलेटेड फॉर्म में जल्दी से नजर पड़ती है तो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है. डॉक्टर श्वेता अग्री? Yes, sir, I will try. परफेक्ट परफेक्ट. नो प्रॉब्लम. बहुत बढ़िया बच्चे. वेरी नाइस. जितनों ने भी किया है डेफिनेटली वो बधाई के पात्र हैं. अच्छा किया है. मेरी बात सुनी. क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर के इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हो. एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहे हो. उसको फॉलो करोगे तो सक्सेस विल बी योर्स. नहीं करोगे तो ऐसे बैठे रहोगे जैसे सारी जनता बैठती है ना. आई एक्सपेक्ट कि यू विल पार्टिसिपेट मोर इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज. बीच बीच में भी मैं आपको लेक्चर लेने के लिए भी लगाऊंगा. एक लेक्चर आप जैसे मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ. बढ़िया सा एक स्पंदन, गायत्री. व्हाट वी कैन डू. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट वी कैन डू समटाइम. सपोज अपने को समझ में आ गया गायत्री पूरा कि हाँ डाइजेस्ट सिस्टम में आप किसी को पढ़ा भी सकती है. सी डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम एंड इट हैव सम एरर्स. अग्री. बट एटलीस्ट वो कोशिश तो की जा सकती है ना. जैसे पाठक सर पढ़ा रहे हैं. क्या होता है पहले बकल कैविटी से लेकर पूरा एनल पोर तक एक सीक्वेंस बताया. देन उस सीक्वेंस के बाद फिर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि देखिए ये टीथ, बकल कैविटी, ये पैलेट, ये यूवुला, ये टंग, इसकी पैपिलीज, उसकी बर्ड्स, इसमें होती है, इसमें नहीं होती है टेस्ट बर्ड्स एंड व्हाट नॉट. जो सीखे जब आप किसी को पढ़ा आप डबल सीखते हैं ऐसा कहते हैं. अग्री? अग्री और नॉट? Yes, sir. तो ऐसा भी कभी कभी लगे कि कॉन्फिडेंस आए तो मुझे बना के एक वीडियो भेजिए कि सर देखिए मैंने ये बढ़िया से बनाया है ना. तो मजा आएगा आपको भी. जैसे बायोमोलिक्यूल समझ में आ गया. पूरा एंजाइम पे एक बना दिया कि एंजाइम वी विल गो थ्रू दीस टॉपिक्स. ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. बिकॉज व्हेन यू टीच समवन यू लर्न ट्वाइस. टीचिंग इज ट्वाइस लर्निंग. अग्री? Yes, sir. परफेक्ट. चलिए Yes, आगे sir. बढ़ते हैं दोस्तों. डाउट आपने डाउट शेयर किए हो तो बताइए. एल्स आई विल स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट, द केमिकल डाइजेशन. हैव यू शेयर्ड द डाउट्स? Yes, sir. प्रसन्ना, जिसने भी डाउट्स भेजे हैं वो फिर से अपने डाउट्स के नीचे, वो नीचे चला गया होगा इमेजेस के चलते. जिसने भी भेजे हैं उसको हेलो करके भेज दीजिए. हेलो तो वो ऊपर आ जाएगा व्हाट्सएप एंड चेक. ओके समिता. अच्छा ये डाउट है आपका राइट? समिता. Yes, sir. Is it your doubts? Yes, sir. Okay. Anyone can tell me who come across the pairs patches? Sir, may I? May I? Yes, absolutely. Sir, they are the small Okay. lymph nodes which are found in the
mucus of small intestine. Okay. Of what? Fish, reptiles, birds, Sir, mammals. 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 अब इसको ऐसे समझिए समिधा, इट वाज योर क्वेश्चन. परफेक्ट. समिधा, सबसे पहले तो पैचेस की कहानी समझिए. मैंने अभी हालांकि आपको पढ़ाना है, पार्ट आपको बताऊंगा. मैंने एक चीज अभी छूट गई बच्चों, अपने लीवर का पूरा एनाटॉमी रह गया अपना. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, पेयर्स sir. जो होते हैं, मैंने आपसे कहा था जगह जगह पर एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि एट रेगुलर इंटरवल कहीं ना कहीं लिम्फ ऑर्गन्स दे दिए गए, सो दैट सिंस इट इज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, लिम्फ, क्योंकि लिम्फ में होती है WBC, समिधा, एंड WBC आर सोल्जर्स. अग्री? Yes, sir. उस जहां पर इंटेस्टाइन में वो रह रहे हैं, these are nothing other than patches, right? Yes, sir. Okay, perfect. Anyone? अच्छा, ये एक और कुछ क्वेश्चंस आए हैं. वेरी गुड. Perfect. Distinct microvilli are present on all of the following except. Microvilli कहां पर प्रेजेंट होते हैं? नहीं, सब पर होते हैं except किस पर नहीं होते? Cells lining the proximal convoluted tubules of the kidney, follicular cells of the thyroid gland, absorptive cells of the intestinal epithelia, mucous cells of the salivary gland. Answer एकदम clear है. Anyone? 4. 4. 4. अब ऐसे Four. समझते हैं. Whose question is this? Sir, I Prasanna. प्रसन्ना. प्रसन्ना बेटा कैसा है, यदि आप पूछें, पहला स्टेटमेंट आपने अभी नहीं पढ़ा क्योंकि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना. Yes, sir. किडनी में क्या होता है बच्चों, जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, 10th में आपने पढ़ा होगा PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के पास सबसे ज्यादा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो मैक्सिमम सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है. टू इंक्रीज दैट सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, वहां पर भी माइक्रोविलाइज होते हैं. रहा सवाल थायराइड ग्लैंड, तो वो तो सीक्रेटरी है, तो वहां पर भी माइक्रोविलाइज होते हैं. और एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलिया तो है ही, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड के म्यूकस को कहीं पर भी सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत नहीं. प्रसन्ना, am I right? Yes, sir. The answer should be 4. Got it? Yes, sir. It is correct. Perfect. आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज, अरे सिंपल आंसर था, लॉजिक भी नहीं था कुछ बहुत ज्यादा. आंसर इज 1. आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज पैंक्रियाज की सेल्स है. पैंक्रियाज और लीवर, ये पार्ट मैंने अभी आपको डिटेल में बताना है ना, बता देता हूं ताकि बार बार ये गलतियां नहीं हो. आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज जिसकी 3 सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, दैट इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाज. अग्री? Okay, sir. Yes, sir. इमेजेस सीधे भेजा करो ना, तो सीधे मुझे रोटेट नहीं करना पड़ेगा. ओके, विच क्वेश्चन? Which are corrected? Question number 11, 13, 14, 15, and 16. ठीक है. 11, valve of Kerkering is another name for. हाँ, ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा. प्लीका सर्कुलरिस, प्लीका सेमिलुनरिस और प्लीका वैल्वुलिस, ये आपको याद करना पड़ सकता है. valve of Kerkering, it is a learning part. Another name, Okay, if I can recall it correctly, then valvuli. I'm not sure, but is it valvuli? No, sir. It is first one. Circularis. Okay, plica circularis. It is, we need to learn it. Okay, Prasanna. Yes, sir. 13, intestinal villi are mainly concerned with. Oh, बोलिए फट से, instant answer anyone? Absorption. Absorption. Because villi increases the surface area for absorption. So answer should be 4. Prasanna.
Yes, sir. Okay, Peyer's patches now done. It is mammals. Peyer's patches contain lymphocytes. Answer 3. Done. Yes, sir. The muscular contraction in the alimentary canal is known as. Oh, Prasanna, पढ़ नहीं रही हैं आप. What is the answer? Answer should be 3. Peristalsis. 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 ना पढ़ नहीं रही हैं बेटा आप यार. ये सब मैंने बताया, सब पढ़ाया है मैंने. Which one of the following is the correct match? Pituitary, thyroxine, salivary, amylase, adrenal, vasopressin, ADH. Correct की incorrect पूछा था, ये incorrect है. Islets of Langerhans, secretin. ये गलत, ये गलत. Answer should be 2. क्या ही कर रही हैं? क्या ही कर रही हैं? Yes, Sir, sir. because amylase is also present in saliva. अरे प्रसन्ना कैसे सवाल पूछ रही है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड से तो निकलता है ना अमाइलेज, इसीलिए तो आपसे टेबल बनवाया था डॉक्टर. Yes, sir. Which one? Sir, question number 8 and 9. Which is the characteristic of the lining of stomach of mammals? Paneth cell, Dieter cells, oxyntic cells, Kupffer cells. ये भी सिंपल था क्वेश्चन. Anyone? Oxyntic cells. Oxyntic cell. Oxyntic cells. अरे भाई सिंपल था. स्टमक की लाइनिंग जो है ऑक्जेंटिक. पैनेथ सेल शायद दूसरा नाम है टाइटल अपना चीफ सेल्स का. यहाँ पर आंसर होना चाहिए थर्ड, ऑक्जेंटिक सेल्स. प्रसन्ना. Yes, sir. It is third. Okay. In the empty stomach, mucosal fold appears. They are called Options. mucosal fold. हाँ बोलो. Rugae. रूजेस. एम्प्टी स्टमक में म्यूकोसल फोल्ड्स को रूजेस कहते हैं. ये लर्न करना पड़ेगा. Okay, sir. Sir, I thought it is villi. स्टमक में क्यों होंगे बेटा विलाई? Okay. Plasma proteins such as albumin and globulin are synthesized in liver, pancreas, kidney, intestine. क्या लगता है? लॉजिक था सिंपल. क्या लगता है दोस्तों? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन जैसे प्रोटीन्स कहां बनेंगे? Liver. एनीवन? हाँ, कौन बोला? Cyan. बच्चों सिंपल सी बात है. मेरे हिसाब से भी लीवर होना चाहिए. व्हाट इज द गिवन आंसर? Liver. बच्चों पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन ये तो डाइजेस्टिव पार्ट हो गया. ये बनाएंगी क्यों कुछ? और दूसरा किडनी हो गया. वो एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक पिगमेंट बनाती है, एक टॉक्सिक एक प्रोटीन बनाती है एरिथ्रोपोइटिन, किडनी है ना, जो कि आरबीसी के बनने में मदद करता है. तो यहाँ प्लाज्मा के सारे प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन. वैसे भी ग्लोबुलिन आपको ध्यान रखना था, इट इज फ्रॉम लीवर. Yes. Match the items in column 1 and 2 and pick up the correct combination. Crypts of Lieberkuchen. Crypts of Lieberkuchen, intestine, एक. Pancreas, duodenum, adrenal gland, kidney, gastric gland, stomach. Okay. So, Crypts A का हो गया R, AR, B, P, ARBP, ARBP, ARBP दोनों में दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर 3 और 4 कट गया. अब बचता है एड्रिनल, किडनी के ऊपर होती है तो CS और D R, CS, CSDQ, CSDQ. आंसर 2 दिया क्या? देखिए Sir. क्या ही सवाल पूछ रहे हो लोग. थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ बच्चों. इसमें क्या समझ में नहीं आया था प्रसन्ना? Sir, first one A. क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन आपने एनसीईआरटी पढ़ी प्रसन्ना? Yes, sir. मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था डायग्राम के साइड में लीवर और क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन. Hmm. अरे Sorry, डायग्राम के sir. साइड
भैया बिना पढ़े तो अटेम्प्ट ना करो दोस्तों। Which one? Question number 2, 3 and 4. अब 2 तो आप बताइए आंसर खुद ही, बोलिए। Intestinal tract. एक थर्ड आप बोलिए, अभी हुआ है, अभी होने का है, डाइजेशन पार्ट अभी होने का है। फोर्थ बोलिए, फोर्थ बोलिए। Mucosa. Which layer of stomach are gastric glands located? It is given mucosa. Doubtful. Yes, sir. Gastric gland in mucosa layer. अच्छा, okay. Mucosa given. Please check. Yes, sir. Okay. Perfect. Yes, ठीक sir. Mucosa. ठीक है, ठीक है, no problem. Brunner's gland जहां तक होती है, that is I think in submucosa. Need to check. Intestinal villi are supplied with only blood capillaries, only lacteals, lacteals and valves. Blood. Answer 4. Prasanna. Yes, sir. It is given. अब लैक्टियल्स जहां तक बात है, लैक्टियल्स मैंने शायद आपको बताया था क्या? डाइटरी फैट्स नहीं बताया, अभी नहीं पढ़ाया होगा, अभी एब्जॉर्प्शन पर अपन आए नहीं। आपने डाइटरी फैट्स बताया था। से जाते हैं ना, हाँ बताया था ना, डायरेक्ट ब्लड में नहीं एंट्री करता है। यस सर। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में मैं बता। Whose question is this? सर राशि। राशि चौरड़िया है ना। Which of the following is the characteristics of mammalian liver? Kupffer cells and leukocytes, leukocytes and canaliculi, Gleason's capsule, ये तो लीवर है, हाँ लीवर ही पूछा है ना, कुफर सेल्स, ग्लीसन कैप्सूल एंड ल्यूकोसाइट्स। आंसर 3 दिया है क्या? देखो, यस सर। ये पढ़ाना है बेटा, मेरे को लग रहा है लीवर और पैंक्रियास पढ़ा देता हूँ पहले, नो प्रॉब्लम, वो छूट गया गलती से। ठीक, एनीवन शेयर्ड? आई थिंक नो मोर डाउट्स। Okay, no more doubts. Okay, I think I should explain liver first, है ना? Heading डालते हैं बच्चों liver, and then पैंक्रियास खत्म करने के बाद फिर हम लोग डाइजेशन पर आएंगे तो ज्यादा बेटर है। Let us start with liver. डालिए हेडिंग liver. Let me check if I can share an image with you based on liver. Number 1, it is the largest gland. It is the largest gland in human body. It is the largest gland in human body. Noted? Yes, sir. यस सर। Yes. Perfect. Point number 2. Point number 2. Into 2 lobes, right and left. Divided into 2 lobes, right and left. And are separated by falciform ligament. Falciform ligament. FALCI. Falciform ligament.
Noted? Sanika, be on mute. Okay. Next point. Next point. Basic structural and functional unit of the liver. Basic structural and functional unit of liver is hepatic lobule. Is hepatic lobule. Each lobule is covered by thin connective tissue layer. Thin connective tissue layer, that is need का statement. Gleason's capsule. Gleason's capsule. So इस point को मैंने लिखा दिया सायन. That is need point. Yes, sir. Gitesh, Arpit, Kunjan, Swaraj, agree? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Perfect. Okay. Each lobule has number of hepatocytes. Number of hepatocytes. Hepatocytes are hepatic cells. Agree? Yes, sir. Okay. Scattered phagocytic cells are known as Kupffer cells. Scattered phagocytic cells. ये भी नीट स्टेटमेंट है. राइट? और अब मैं इसकी बात करता हूं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन Sir. that I'm going to share on screen. Structure and function. Arpit, be on mute. Sir, I want to ask that what are the hepatocyte? Hepatocyte. Site मतलब होता है cell, hepato मतलब hepatic. Hepatic यानी liver. Liver की cells. That is hepatocytes. Okay? Okay, sir. Thank you. Perfect. अब मैं पहले स्ट्रक्चर बताता हूं और फिर फंक्शंस बताता हूं. Hope screen is visible. Yes, sir. परफेक्ट. बच्चों इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, गायत्री, स्पंदन, पूरव, जो लीवर है, लीवर से मैंने आपको कुछ डक्ट्स बताई थी. राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. परफेक्ट. उसके बाद दोस्तों फिर मैंने ये भी बताया था कि राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जॉइंस टुगेदर एंड फॉर्म्स Common hepatic duct. Common hepatic duct. common hepatic duct. Perfect. That common hepatic duct joins with gallbladder because gallbladder has its own duct. The name is Cystic duct. cystic duct. Perfect. Perfect. That is cystic duct. And when common hepatic duct joins cystic duct, they form Common Common bile duct. bile duct. Bile duct. bile duct. Common bile duct. Perfect. Common bile duct. Okay, चलिए
सो ऐसा करके कॉमन बाइल डक्ट व्हेन इट ओपन्स, अब मैं इंस्टेंट आंसर पूछूंगा, कॉमन बाइल डक्ट जब नीचे की तरफ आती है, ड्यूडेनम में खुलती है, उस ड्यूडेनम में ओपन होने के पहले इट जॉइंस अ पैंक्रियाटिक डक्ट, एम आई राइट? Yes. Yes, sir. Yes. When it joins the pancreatic duct, then it is joined by a opening called Sphincter of Boyden. Sphincter of Sphincter of Boyden. कौन बोला? Saprapti. Prapti. Very nice, Dr. Bhandari. Sphincter of Boyden. Because when it joins to pancreatic duct, it opens through sphincter of Boyden. But when it opens into the duodenum region, it has another sphincter, that is Oddi. Sphincter of Oddi. Sphincter of perfect. So ये questions 100% नीट का question है. But Gayatri, one thing must be remembered, must be noted. In your NCERT only, the common bile duct is known as ductus cholindochus. Gayatri, Yes, sir. ductus cholindochus. Noted? Yes, sir. One more part is there. That is ampulla. दिख रहा है बच्चों ampulla? Yes, sir. Yes, sir. स्पंदन, आप सवाल दिया था, सायन के सवाल का जवाब दिया था डीसी ग्रुप पर, आपने वहां पर एक फ्लेक्सर को लिखा था कर्व रीजन, है ना? Yes, sir. हाँ. One more, that is ampulla. Ampulla is also a swollen and turning part. एक curve part होता है. That curve part, swollen part is known as ampulla. स्पंदन. That is also you need to remember. Okay? Yes, sir. तो टोटल डक्ट्स की बात यदि बच्चों करो तो मैंने लिख रखा है, देखिए कितने क्वेश्चंस बनते हैं. हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट. अग्री? Yes, sir. अब हाँ, याद क्या रखना है? हेपेटिक डक्ट इज फ्रॉम डेफिनेटली लीवर, सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गैल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट इज द जंक्शन ऑफ हेपेटिक एंड सिस्टिक डक्ट, pancreatic duct from pancreas, but hepatopancreatic duct is the common of bile and pancreatic juice that opens into the duodenum. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, केवीपीवाई एस्पिरेंट्स और तमाम एस्पिरेंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है. फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, एंड आई शुड नॉट एग्जैक्टली डिक्टेट दैट फंक्शंस, बट जहां पर समझाने की बात आएगी वो मैं आपको कर देता हूं, है ना? आई होप यू ऑल गॉट स्टडी मटेरियल. Yes, sir. बच्चों, इसमें एक एक फंक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं. मैं लिखवाऊंगा नहीं, बिकॉज ये आपको लिखना है. इट सीक्रेट्स बाइल इज अ कॉम्प्लेक्स watery fluid containing bile salt, that is sodium taurocholate and sodium glycolate. Bile pigment, bilirubin, biliverdin, everyone knows, cholesterol, mucin, lecithin, fats, etc., which is breaks and emulsifies the fat. अब पहला पॉइंट क्या कहना चाहता है? इमल्सिफिकेशन. मैंने आपको पहले भी कहा है कि डाइजेशन में केवल 3 मेजर सब्सटेंस है, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. डू यू नो दिस? Yes. Yes, sir. That lipid, proteins and carbohydrate, which is the energy source, that lipid, proteins and carbohydrate का carbohydrate part start their digestion from the buccal cavity, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा डाइजेशन हो जाता है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. बट लिपिड और प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होते. प्रोटीन स्टमक से स्टार्ट करता है और फैट्स स्टार्ट तो कर देता है, बट एक्चुअली वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट कंप्लीट होता है. यानी carbohydrate starts partial digestion in buccal cavity, protein starts partial digestion in stomach, and fats start its digestion in small intestine. Better I should say, अभी नहीं लिखना है आपको, ये सब आपको बाद में नोट कर लेना. I'll share this image. I hope this is given in your modules. Am I right? Yes, sir. Perfect. No problem. So मेरा यहाँ कहने का मतलब,
सिर्फ आपको ये बताना है कि लिख तो आप लेंगे, कोई भी सब्सटेंस, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बच्चों, इट स्टार्ट इट्स डाइजेशन फ्रॉम द बकल कैविटी, बट अल्टीमेटली वेयर इट एंड्स, एनीवन? वेयर इट एंड्स, डाइजेशन खत्म कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। Helium. स्मॉल इंटेस्टाइन, परफेक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे तो डाइजेशन नहीं होता, फिर वहां से एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। इन सेकंड पॉइंट, in the liver, hemoglobin of the worn out erythrocytes break down to form bile pigment bilirubin and biliverdin. यदि किसी वजह से आरबीसी डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, टूट रही हैं, हीमोग्लोबिन टूट रहा है, और हीमोग्लोबिन जो टूटा हुआ हीमोग्लोबिन है, सॉरी आरबीसी से जो हीमोग्लोबिन निकला है, उसी से बनता है लीवर का बाइल पिगमेंट, जिसे क्या बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कहते हैं। परफेक्ट। इसलिए हीमोग्लोबिन का वॉर्न आउट होना बहुत अच्छी बात नहीं है बार। हाँ यस, डेफिनेटली एक रेगुलर इंटरवल पर ये टूटती रहती हैं, नहीं बनती रहती। इसका लाइफ स्पैन भी हम लोग देखेंगे कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। एनीवन जनरल नॉलेज? 120 days. परफेक्ट सायन, वेरी नाइस, 120 days, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, excess quantity of carbohydrate are converted to glycogen, ये तो बताता हूँ, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। परफेक्ट। अभी 3-4 चीजें मैं आपको बताता हूँ। नीचे के पॉइंट्स देखते हैं 6 से। इन एम्ब्रियो आरबीसी मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीवर, पॉइंट नंबर 6 नीट स्टेटमेंट। ऊपर के 3 पॉइंट्स बताता हूं बच्चों में, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, वो सब बताता हूं। पॉइंट नंबर 6 देखिए, आरबीसी मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीवर, नीट पॉइंट है ये, नोट कर लीजिएगा सब, है ना, बाद में लिख लीजिएगा। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, सर्टेन अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फाउंड इन द लीवर, अग्री। प्लाज्मा प्रोटीन अभी अपन ने पढ़ा, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन इन द लीवर। विटामिन ए सिंथेसाइज इन लीवर, है ना, गाजर खाने से जो विटामिन ए मिलता है हमें। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, इसमें लॉजिकली जो समझने वाली बात है उस पर आता। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी एस्पिरेंट्स, नीट भी और केवीपी वाले। डॉक्टर भंडारी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. मुद्दा, श्रेयस पैठणे, इशिता, आदित्य शिवाले, गार्गी पाठक, गुंजन, मृदुला, प्रसन्ना, राशि, रिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज बी अटेंटिव, प्लीज बी अटेंटिव। अदिति परदेसी, अदिति क्या डाउट है आपको, बोलो। ओके, और किसी ने मुझे इस पर भी डाउट्स भेज दिए हैं क्या? कुंजल मंत्री, कुंजल, you have sent me the doubts on your my personal number. Yes, sir. They were sending. बेटा वो इस पे मैं इस पे नहीं ले पाता हूँ ना, ठीक है। अभी क्लास के पहले उस पे शेयर कर दीजिएगा, सो दैट हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके Sir, actually, I don't have a phone, so नो प्रॉब्लम, if you ठीक don't है। answer. ठीक है, अभी 3 टर्म समझते हैं, उसके बाद उस पे भी डिस्कस करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, glucogenesis, and one more I can see is glycogenolysis, and one is, ठीक। देखिए बच्चों, श्रेयस पैटर्न फ्रॉम सर, फ्रॉम इन विच बुकलेट दिस फंक्शंस आर गिवन। अरे दिस फंक्शंस आर गिवन इन योर मॉड्यूल्स ना, resonance booklets. Laranya, Sir, I have Sir, got but we don't got that. no, sir, the modules we Sir, didn't Or got. we instead of got human plant physiology, I have physiology. got plant physiology. भाई जी तुम लोग हो यार, तुम्हारी जनरेशन। कुछ बच्चों के मैसेज मुझे आए कि सर उन्हें गलती से प्लांट फिजियोलॉजी का मिल गया, am I right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो भैया उनसे मैंने कहा भी कुछ बच्चों को कि दीपक सर से कांटेक्ट करें और एनिमल फिजियोलॉजी की बुकलेट भी ले लें, डाइजेशन वाली, वो आ गई है बुकलेट, उसको ले लें आप लोग। जब भी मम्मी पापा उधर जाएं ऑफिस से बुलवा लें उनसे, ओके? सर ले सकते हैं क्या, मतलब Okay, sir. वापस कर देना। अरे भाई प्लांट फिजियोलॉजी वापस मत कीजिए, वो रहने दीजिए, वो पैकेट में आना ही है। कैसा होता है, हेड ऑफिस कोटा से पैकेट्स आगे पीछे आ जाते हैं, कभी पैकेट पहले आ जाता है, फिर एक पैकेट बाद में आता है,
तो उसमें स्टडी मटेरियल जो है थोड़ा सा जो मिक्स करने वाला होता है, जो पैकेट्स बनाने वाला होता है वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता ना, वो तो एक वर्कर है, ऑर्डिनरी वर्कर है, अटेंडेंट है। वो अपने उसको बोला जाता है ये 5-5 के बंडल उठाने हैं, ऐसा एक पैकेट बंडल उठाता है और डालता है। तो गलती से उसने फिजियोलॉजी देखा होगा और वो डाल दी होगी, तो आप वो आ गई। बट एनिमल फिजियोलॉजी का भी आ गया है डाइजेशन का, तो जब भी आपके पेरेंट्स जाएं वो ले वहां से उठवा लीजिएगा। प्लांट फिजियोलॉजी कीप इट विथ यू, ओके? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। गायत्री, आर यू देयर? यस सर। परफेक्ट। बच्चों, सबसे पहले मैं बताता हूं ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूको प्लस जेनेसिस। जब भी ऐसा कोई वर्ड आएगा तो ग्लूको का मतलब तो हो गया ग्लूकोज, शुगर। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना। ग्लूकोज का फॉर्मेशन दैट इज ग्लूकोजेनेसिस। सिंपल एकदम, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं। लेकिन ये ग्लूकोज का बनना तभी ग्लूकोजेनेसिस कहलाएगा दोस्तों, जब ये किसी शुगरी कंपाउंड से बना, किसी शुगर कंपाउंड से बना हो, किसी शुगर के मटेरियल से बना। लाइक मैं आपसे ये कहूं कि आपने खाया एक एप्पल और उस एप्पल से आपको यदि मिलता है अमीनो एसिड, उस एप्पल से सपोज आपको मिल रहा है अमोनिया एसिड, ये एक्सेस में हो गया अमीनो एसिड, और इफ दिस अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, इफ एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू शुगर, अमीनो एसिड टू शुगर में कन्वर्ट होते हैं, इफ इट इज converting to sugar, then since it is a non-sugary compound, बच्चों ये कैसा है? non-sugary compound, agree? Yes, sir. Yes. Amino acid it is not sugar ना भाई, स्टार्च शुगर है, पोटैटो में मिलने वाला स्टार्च शुगर है, फ्रुक्टोज शुगर है, सुक्रोज शुगर है, ग्लूकोज शुगर है, गैलेक्टोज शुगर है, मिल्क का लैक्टोज शुगर है, बट ये तो नॉन शुगर है। So if it is from non-sugar to sugar, if it is from non-sugar to sugar, then it is neo. But if it is from sugar to sugar, it is glucogenesis. Do you understand? Gunjan, Mridula, Laranya, Mugdha, Prajakta? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So in a simple terms, if sugar to sugar, then it is what? Glucogenesis. Glucogenesis. But if it is non-sugar to sugar, Gluconeogenesis. क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है, ये एक्सपेक्टेड होता है कि न्यू मतलब न्यू, नियो मतलब न्यू। तो भाई किसी नॉन शुगर से शुगर बन रही है ना, तो इट इज न्यू टाइप ऑफ शुगर, देयरफॉर इट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कहीं भी नियो वर्ड यदि आता है, so now onwards you are confident that neo means new and it is from non carbohydrate to carbohydrate. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Perfect. So now one is glycogenolysis. कोई बात नहीं भाई, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यदि आप पूछ रहे हैं तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल। When I was starting digestion, I told you कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ खा नहीं सकते। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं होता, सो वी नीड टू डाइजेस्ट इट। हमने उसे डाइजेस्ट कर लिया, उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब एब्जॉर्ब तो हो रहा है बट स्टोर नहीं हो रहा है, तो स्टोरेज मॉलिक्यूल मैंने बताया था कौन सा? Glycogen. Glycogen in animals and starch in plants. Perfect. Glycogen in animals and starch in glycogen is in animals and starch is in plant. ठीक है जी। बट ये ग्लाइकोजन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं ज्यादा ब्रेड सैंडविचेस खा रहा हूँ, ज्यादा चावल खा रहा हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जा रहा है और उससे ग्लाइकोजन बन रहा है। सायन, एम आई राइट? Yes, sir. या सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है ब्रेड तो कम, बटर ज्यादा खा रहा हूँ, घी ज्यादा खा रहा हूँ, तेल ज्यादा खा रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। Yes, sir. मतलब यार एक ऐसा मटेरियल है जो शुगर है, लाइक व्हीट, ब्रेड, सैंडविच, बटाटा, वो ज्यादा खा रहा हूं उससे ग्लाइकोजन बन रहा है।
बोलिए क्या नाम होगा? बोलिए ग्लाइकोजिनोसिस या ग्लाइकोजिनोसिस नहीं, जिनेसिस। ग्लाइकोजन तो बन रहा है बट शुगर के कंपाउंड से बन रहा है ना। लेकिन यदि बटर, घी, तेल ये ज्यादा खाने में आ गया है और उससे ग्लाइकोजन बन रहा है तो दैट इज व्हाट? बोलिए। ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस। स्पंदन को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Every time, Gargi, every time when I'm using the word neo, that means what I'm telling you, that is from non-sugar to sugar. If it is sugar to sugar, neo word हटा दी, बाकी sentence को। Agree दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपने ये सब किसके फंक्शन से पढ़ा? लीवर के फंक्शन। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. लीवर के फंक्शन में ये सब क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, इंटेस्टाइन तक डाइजेस्ट हुआ सारा सब्सटेंस थ्रू माइक्रोवेलाई, इट एब्सॉर्ब एंड इट रीचेस टू द हेपेटिक सिस्टम यानी लीवर, वेयर इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन व्हेनेवर इट इज नीडेड। सपोज थर्सडे का कोई या फ्राइडे का या सैटरडे का कोई फास्ट कर रहा है, उसने इंटेक नहीं किया, फूड इंटेक नहीं हुआ, उसको क्या एनर्जी लेवल कहां से मिलेगा? वो लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा एंड ग्लूकोज विल गिव द एनर्जी। सो स्टोरेज मॉलिक्यूल कौन हुआ? ग्लाइकोजन। अग्री? Yes, sir. अग्री? Yes, sir. अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस ध्यान ये रखना है कि वो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन शुगरी कंपाउंड से बन रहा है या नॉन शुगरी कंपाउंड से बन, राइट? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीवर के पार्ट मैंने आपको सारे पार्ट्स वर्ड्स बता दिए। जो दो लोब होते हैं लीवर के, बाइलोब होता है, उन दोनों को जोड़ने वाला लिगामेंट फाल्सिफर्म लिगामेंट, उसमें लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल की जो कवरिंग होती है उसे ग्लीसन्स कैप्सूल। और कोई डाउट बोर्ड पे जो लिखा है उसमें? चेक कर लीजिए। Sir, can you please repeat the बोलो बोलो बोलो। नहीं आवाज है बच्चों, क्या बोले? बोलो फिर से। Sir, am I audible? यस यू आर ऑडिबल, बोलिए। Please, can you repeat the three concepts? Which three? Glyconeogenesis, and glyconeogenesis. कौन पूछा? Gargi, sir. ओके गार्गी, आई कैन रिपीट। ऐसे समझिए गार्गी कि कुछ भी बेटा यदि शुगर कंपाउंड से शुगर कंपाउंड बन रहा होगा ना, छोटे शुगर बड़ा शुगर बन रहा होगा। छोटा शुगर मतलब ग्लूकोज, या छोटा शुगर मतलब मैंने और ले लिया कोई मान लेते हैं फ्रुक्टोज। छोटे शुगर से बड़ा शुगर बन रहा है, बड़ा शुगर मतलब ग्लाइकोजन। तो यदि शुगर टू शुगर है तो जिनेसिस, नॉन शुगर टू शुगर है तो नियोजेनेसिस। गार्गी, बस इतना सा कंसेप्ट। शुगर टू शुगर जिनेसिस, शुगर टू नॉन शुगर नियोजेनेसिस। अग्री? Yes. अब जो भी बन रहा हो, ग्लाइकोजन बन रहा होगा तो ग्लाइकोजेनेसिस, नहीं तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज बन रहा होगा तो ग्लूकोजेनेसिस, नहीं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट? Thank you. परफेक्ट बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं पैंक्रियाज। लीवर में देखिए कोई समस्या है क्या? मतलब लीवर में तो कोई समस्या नहीं होगी, लीवर के पार्ट में कोई समस्या है क्या? टॉपिक में कोई समस्या है? लीवर में तो समस्या ईश्वर करे ना होगा। प्लीज चेक। गायत्री, एनी डाउट इन लीवर? नो सर। और सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो गैल ब्लैडर होता है, जो गैल ब्लैडर होता है, चूंकि इसके आपने ये तो पढ़ ही लिया है कि लीवर का जो सीक्रेशन है वो अपने टेबल में तो बना लिया, इसलिए वो छूट गया होगा पार्ट अपना। कितना लीटर होता है, उसका कंपोजिशन क्या है। लीवर के केस में
एंजाइम्स नहीं होते, बताया था मैंने, am I right? यस सर। Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। गॉल ब्लैडर जो है वो केवल स्टोर करता है और बाइल को कॉन्सेंट्रेट करता है, बाइल को स्टोर करता है और उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, वो बनाता नहीं है। इसलिए सीक्रीशन कहते हैं लीवर से और रिलीज कहते हैं गॉल ब्लैडर से। रिलीज वो करता है जो स्टोर करेगा, और जो बनाकर निकालेगा वो सीक्रीशन। अग्री? Yes, sir. चलिए हेडिंग डालिए बच्चों, पैंक्रियास। वो भी बता देता हूं ताकि फिर डाइजेशन वाला ही पार्ट रहेगा, केमिकल डाइजेशन। बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ते हैं। पैंक्रियास। नंबर 1 पॉइंट, एंडोडर्मल ओरिजिन, सिंगल एंडोडर्मल एंड हेटेरोक्राइन। तीनों के मतलब पता है क्या आपको? सिंगल मतलब अनपेयर्ड, एंडोडर्मल मतलब जिन 3 जर्मिनल लेयर से हमारा डेवलपमेंट होता है, सारे ऑर्गन्स बनते हैं, वो 3 जर्मिनल लेयर, कोई बताएगा कौन कौन सी? एंडो, एंडोडर्म, Endoderm. ये बनी है एंडोडर्म। सो हेटेरोक्राइन मतलब which is a mixed type of gland। हेटेरोक्राइन मतलब होता है दोस्तों मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड, जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। अग्री? Yes, Yes, sir. sir. ठीक। ये पाई कहाँ जाती है? तो लूप ऑफ ड्यूडेनम, लूप ऑफ ड्यूडोनम। नोटेड? लूप ऑफ ड्यूडेनम, लोकेशन लूप ऑफ ड्यूडेनम। नेक्स्ट, एक्सोक्राइन and 1% endocrine। नोटेड? Yes, sir. एक्सोक्राइन में होते हैं लोब्यूल्स, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स जिसे कहते हैं एसिनी, और इसमें होती हैं, अभी बताया था मैंने क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगर, लैंगरहैंस। ये लोब्यूल सीक्रेट करते हैं अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस। देखिए लॉजिक कौन सा है, ये क्या लिखा मैंने? Alkaline. इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलने वाला है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलने वाला है तो ऊपर से जो एसिडिटी आ रही है HCl, से जो एसिड आ रहा है पहले उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अग्री? Yes, sir. पैंक्रियास से बाइकार्बोनेट भी निकलेगा और पूरा सीक्रेशन भी अल्कलाइन सीक्रेशन। परफेक्ट। उसके बाद ये जिस डक्ट से निकालता है उस डक्ट का नाम डक्ट ऑफ वारसन, डक्ट ऑफ वारसन, है ना? और ये इसमें तो डक्ट लगेगी क्योंकि कैसा है ये एक्सोक्राइन है तो डक्ट लगेगी, है ना? और इसको तो डक्ट लगेगी नहीं,
इसमें 3 सेल्स अल्फा, बीटा एंड डेल्टा. अल्फा secretes what? Anyone? Glucagon. Glucagon. Beta secretes what? Insulin. Insulin. Delta secretes what? Hormones. Somatostatin. somatics, ये कहां खुलेगी? Opens into small intestine. Agree? Agree? Yes, sir. Through ampulla. Through ampulla. बच्चों visibility is clear? Yes, Yes, sir. sir. Perfect. Yes, sir. Anyone can tell me what is the function of glucagon? Anyone? Increases blood sugar level. Blood sugar. Perfect. Increased blood sugar. इंसुलिन क्या करता है? Decrease blood Decrease sugar blood level. blood sugar. Please. शुगर जिसकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? Diabetes. Diabetes. Somatostatin. Effect on growth. No role in digestion, but effect on growth. कल टेबल में हमने पैंक्रियाज लिखा था कि नहीं? Yes, sir. लिखा था सर सर. लिखा था. लिखा था. Yes. So that's all, my dear. ये आपका लीवर और पैंक्रियाज वाला पार्ट जो रह गया था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब क्लस्टर ऑफ सेल होता है जिसमें 3 सेल्स होती है अल्फा, बीटा और डेल्टा. अल्फा ग्लूकागॉन. मैं कैसे याद करता हूँ? ग्लूकागॉन शुगर ऊपर, इंसुलिन शुगर नीचे. तो चाहे जैसे याद कर लो उसको. परफेक्ट. इस तरह से मैंने आपकी सारी ग्लैंड्स बताई. टेबल आपने बना लिया है. पूरा भाई जिन्होंने टेबल नहीं बनाए हैं वो टेबल बना लें, नहीं तो मुश्किल होगी. Yes, ओके. sir. सर ये बोर्ड का फोटो डाल दो ना प्लीज. यस यस, बोर्ड का फोटो मैं डाल रहा हूँ. और नेक्स्ट इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर, दैट इज केमिकल डाइजेशन. और केमिकल डाइजेशन विल. हाँ बोलिए. Sir, I just want to confirm means the syllabus of tomorrow's test is still that table, na? टिल दैट टेबल. हाँ, टेबल से ज्यादा कुछ किया भी नहीं ना अपने. ये दोनों ग्लैंड्स भी इंक्लूड होंगी उसमें गायत्री, क्योंकि ये दोनों ग्लैंड्स तो उसी का पार्ट है ना, लीवर और पैंक्रियास. Yes, sir. तो टिल टेबल पूरा डाइजेस्ट सिस्टम और टिल टेबल और ये आज का पार्ट, मतलब आज तक का सारा पार्ट आएगा उसमें. 2 to 3 होगा एमए बैच का भी और एमडी जो कि अब MA2 के नाम से जानी जाएगी. परफेक्ट. MA3 का नया सिलेबस शुरू होगा और जितने भी स्टूडेंट स्विच करना चाहते हैं उन्होंने मुझे मैसेज डाल दिया है. जिन्होंने नहीं डाला वो डाल दें ताकि मैं उन्हें MA3 में ऐड कर दे. डन. सर, हाँ बोलिए. सर जो कल का क्लास होने वाला था वो शाम को प्लीज रखो. Send me the doubts on my personal number. अरे किसी ने भेजे थे ना मुझे, मुग्धा या मृदुला, किसने भेजे थे? जिसने भी मुझे भेजे थे वो बेटा DC नंबर पर सेंड कर दीजिए. अभी अपन चेक कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. सेंड. Sir, actually I can't the phone. There is no phone at home right now. नो प्रॉब्लम. एक्चुअली 2 times आई नीड टू शेयर ना, मुझे यहाँ पर भी उसको डाउनलोड करना पड़ता है फिर उधर भी भेजना पड़ता है. कुंजल ने भेजे थे. एनीवन मोर अदर देन कुंजल? Other than Kunjal, anyone has sent me? No. Sai Kharte. Sai Kharte.
Okay, what is the question? Which question? Which question? So the enzyme released from stomach is, so that one. Enzyme released from stomach is. Anyone? Simple question था कुंजल. रेनिन जो होता है बच्चों, डाइजेशन वाला एंजाइम है. यूरिकेज इधर पे जरूरत नहीं है, पेप्टोन की जरूरत नहीं है, यूरिडाइल ट्रांसफरेज की जरूरत नहीं. आंसर शुड बी 1. कुंजल. Yes, sir. Thank you. और मैंने आपको बताया भी था रेनिन और रेनिन, डबल एन और सिंगल एन. कुंजल और बोलिए नंबर फटाफट कौन सा है? Sir, you explained this, the duct of Wilson, so it is no longer वेरी a गुड, doubt. वेरी गुड. वो थोड़ा सा मेरा गलती हुआ, लीवर और पैंक्रियास पहले ही बता देता तो इतने भी क्वेश्चंस नहीं आते. नो प्रॉब्लम. काइलोमाइक्रोन, अभी इसको काम होना है, अभी अपने आगे पढ़ने वाले हैं अपन. काइलोमाइक्रोन है ना, ये फैट ड्रॉपलेट्स है बेटा. फैट ड्रॉपलेट्स है फॉस्फोलिपिड वाला. ठीक है. Yes, sir. Thank you. काइलोमाइक्रोन प्रोटीन वाला, ये अभी मैं आपको बताऊंगा डाइजेशन के समय. ओके. Which one? 10th? Yes, Which sir. one? 10th, ये भी sir. सब ये सब डाइजेशन का पार्ट है बेटा. डाइजेशन मैंने अभी आपको बताना है. प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्टिडेज, पेप्सिन, है ना. फर्स्ट, Yes, sir. फर्स्ट, ओनली फर्स्ट. आंसर इज 1. इज Okay, इट? sir. Yes, sir. It is. बाकी तो फैट्स और लिपिड्स को तोड़ने वाले बच्चे. कोई बात नहीं, चलिए. ठीक है, आपने भेज दिए. नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा कि यू हैव टू सेंड मी ऑन माय डीसी नंबर. ओके. Okay, sir. Thank you. चलिए, आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन. टुमारो 2 to 3 एक प्रैक्टिस पेपर होगा. एंड देन सभी ने मैसेज मुझे कर दिया है जिनको शिफ्ट करना है. अच्छा, वन मोर थिंग, आई शुड स्टॉप. It is not MCQ. हाँ गायत्री बोलो. Sir, means it is not MCQ. It is like subjective paper. It is MCQ. It is MCQ, Gayatri, but whether it is online or in offline mode by PDF, that is not yet decided. वो सरप्राइज होगा आपको. Agree? Yes, sir. Thank you, sir. I'm going to close the class. Be ready for tomorrow's test. And if any doubt, then after the test, we'll get it solved again with the discussion. Okay? All the best.